إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تمام تعریفات صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح سے بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا میں آتے رہے. اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے اوپر لاکھوں درود و سلام ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. سامعین کرام، اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہم نے تمہیں وہ تمام چیزیں دیں جو تم نے ہم سے مانگی. یعنی اللہ انسانوں سے کہتا ہے کہ انسانوں جو کچھ تم ہم سے مانگتے ہو ہم تمہیں دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بات پر غور فرمائے کہ اللہ رب العالمین صرف ہمیں وہ چیزیں نہیں دیتا جو چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، بلکہ آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے اللہ سے مانگی ہیں اور کتنی ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن کو آپ نے اللہ سے نہیں مانگی ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے. اللہ رب العالمین بنا مانگے دیتا ہے. اسی طریقے سے آج کا دن ہے، ہزاروں لوگ روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں لیکن کتنے لوگ روزی کمانے کے لیے اللہ سے روزی طلب کر کے نکلے ہیں؟ بہت کم ہی لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کو بھی روزی دے گا جو روزی کمانے سے پہلے اللہ سے روزی طلب کی تھی، اور اس کو بھی دے گا جس نے اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں تھا. اللہ آج اس کو بھی دے گا، کل بھی دے گا، پرسوں بھی دے گا، اللہ اس کو بھی کھلائے گا. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ جو کچھ تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو نعمتیں، جو انعام و اکرام ہم نے تم پر کیا ہے، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ ان انسان لظلوم کفار، کہ انسان بے انصاف ہے اور بہت ہی ناشکرا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے اتنے بڑے احسانات اور انعام و اکرام ہونے کے باوجود انسان کبھی بھی اللہ کا
शुक्र अदा नहीं करता। सूरत अल-आराफ में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फखुद मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन, जो कुछ मैं तुम्हें दूं तुम ले लो, वकुम मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजार बंदा बन जाओ। ना शुक्री ना करो, ना शुक्रा ना बनो, बल्कि शुक्रगुजार बंदा बन जाओ। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ हमें दिया है उससे राजी हो जाना है। जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया है, जितना भी दिया है, उससे राजी होना जरूरी है। अगर एक इंसान अल्लाह के दिए हुए इनाम से राजी नहीं होता तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई इंसान मुसलमान ही ना हो, ये भी मुमकिन है। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वरज़ बिमा क़सम अल्लाहु लका तकुन अग़नन नास। फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम उन चीजों से बचो जिन चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए हराम बनाया है, उनके करीब मत जाओ। तकुन अअबदन नास, अगर तुम ऐसा करते हो, अल्लाह के हराम करदा चीजों से दूर भागते हो, तकुन अअबदन नास, लोगों में सबसे ज्यादा आबिद तुम बन जाओगे। मालूम ये हुआ कि इंसानों में सबसे बड़ा आबिद कौन है, सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? वो इंसान है जो अल्लाह की हराम करदा चीजों से दूर भागे। जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उन चीजों के करीब ना जाए। दूसरी चीज, वरदा बिमा क़सम अल्लाहु लका तकुन अग़नन नास, अल्लाह ने तुम्हें जितना बांट दिया है, तकसीम करके अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया है, तुम्हारे हिस्से में जितना आया है उससे तुम राजी हो जाओ। तकुन अग़नन नास, लोगों में सबसे ज्यादा मालदार तुम हो जाओ। मालूम हुआ कि अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है, जितना कुछ हमें दिया है, उससे राजी होना ये ईमान का हिस्सा है, ये जरूरी है। अगर इंसान राजी नहीं होगा जो कुछ अल्लाह ने उसको दिया है, वो परेशान हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो उसको सुकून नहीं मिलेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। अगर हम सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं, तो जरूरी है कि अल्लाह ने जितना हमें दिया है उससे हम राजी हो जाए, मुतमईन हो जाए कि मेरे लिए यही ज्यादा बेहतर था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इतना ही दिया। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? अगर हम राजी नहीं होंगे, हमारे दिलों में हसद पैदा हो जाएगा, जलन, हसद, नफरत। हसद एक ऐसी बीमारी है कि अगर इंसान अपनी तकदीर से राजी ना हो, अल्लाह ने जो कुछ दिया है उस पर मुतमईन ना हो, फिर वो अपने भाई को आगे बढ़ता हुआ देखेगा, तरक्की करता हुआ देखेगा, तो उसका दिल हसद से भर जाएगा, उसके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी कि कैसे मेरा भाई मुझसे आगे बढ़ रहा है, फला इंसान को दौलत क्यों मिली, फला इंसान उसने गाड़ी क्यों खरीद ली, फला इंसान उसकी जिंदगी इतनी बेहतर क्यों है। इंसान परेशान हो जाएगा और इतना परेशान होगा कि अगर उसने अपने इस हसद को कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि वो अपना काम काज छोड़ दे और सामने वाले को गिराने के लिए यही काम शुरू कर दे कि बस अब तो मेरी जिंदगी का मकसद है कि इसको गिराना है, और अपना काम छोड़ देगा। इसलिए जरूरी है कि अल्लाह ने जितना दिया है उस पर राजी हो जाए। अगर राजी नहीं होगा तो दिल में हसद जन्म लेगा, और हसद की बीमारी ऐसी बीमारी है कि एक इंसान अपने भाई का दुश्मन बन जाता है, अपने भाई को तरक्की करता हुआ नहीं देखता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसल गिना अन कसरतिल अरब वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। फरमाया कि मालदार वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा माल हो, जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत है। मालदार वो है गिनन नफ्स, जिसका नफ्स मुतमईन हो चुका है। एक मालदार इंसान है, बहुत पैसा वाला इंसान है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है उसको, लेकिन उसका दिल मुतमईन नहीं है, अभी भी वो अपनी तकदीर से राजी नहीं है। फिर क्या करेगा वो इंसान? मालदार होने के बावजूद अपने ऊपर माल को खर्च नहीं करेगा, अपने बच्चों के ऊपर माल को खर्च नहीं करेगा, रिश्तेदारों के ऊपर माल को खर्च नहीं करेगा, ज़कात नहीं निकालेगा। लेकिन वही मालदार अगर उसका दिल मुतमईन हो जाए,
اور वो अपनी तकदीर से राजी हो जाए तो मालदार अपने माल को बांटेगा, बच्चों में भी बांटेगा, रिश्तेदारों को भी देगा और ज़कात भी निकालेगा। लेकिन अगर दिल मुतमईन ना हो तो माल को बचा बचा कर रखेगा कि ये माल खत्म ना हो जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि असल मालदारी तो दिल की मालदारी है। अगर कोई इंसान गरीब है, ज्यादा पैसे नहीं कमाता और वो अपनी तकदीर से राजी नहीं है, वो अपनी तकदीर से खुश नहीं है, जितना कुछ उसके पास है उससे मुतमईन नहीं है, अगर ऐसा है तो गरीब इंसान जो कम कमाता है या जिसका बिजनेस खराब हो चुका है वो और परेशान हो जाएगा, उसका दिल मुतमईन नहीं होगा, उसके दिल में हसद आ जाएगा और फिर दूसरों को गिराने के लिए वो सुबह शाम कोशिश करेगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि जितना कुछ अल्लाह ने उसको दिया है उससे मुतमईन हो जाए, अपनी तकदीर से राजी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में हर एक को तमाम नियामतों से नहीं नवाजता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की तमाम नियामतों से माला माल कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने ऐसा कानून नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह का कानून ये है कि चंद लोगों को चंद नियामतों से नवाजता है तो कुछ लोगों को कुछ नियामतों से महरूम कर देता है, ताकि उसकी आजमाइश की जाए, ताकि उसको आजमाया जाए। इसलिए हम सब के ऊपर जरूरी है कि जितना कुछ अल्लाह ने हमें दिया है हम उससे राजी हो जाए। अगर ये हमारे लिए जरूरी है कि जितना कुछ अल्लाह ने हमें दिया हम राजी हो जाए, तो फिर एक कमाने वाला वो राजी होगा, तो जिसके लिए कमाने वाला कमा रहा है उसको भी चाहिए कि कमाने वाले से राजी हो जाए। यानी अगर एक बाप है, उसकी ज्यादा आमदन नहीं है, उसके बच्चे, आजकल के बच्चे अपने गरीब बाप को देखना नहीं चाहते। उनको लगता है कि हमारा जो गरीब बाप है या हमारे बाप की जो आमदन कम है उसको अपने बाप को हकारत की निगाह से देखते हैं। बच्चों की ऐसी सोच बन गई है, तो बच्चों को चाहिए कि उसका वालिद, उनके वालिद जितना भी कमा रहा है, जितनी भी आमदन है उससे राजी हो जाए, खुश हो जाए, बाप को प्रेशराइज ना करे, उनके दिमाग में ज्यादा लोड ना डाले। उसी तरीके से अगर बच्चे कमा रहे हैं तो माँ बाप को भी चाहिए कि बेटा जितना कमा रहा है उसकी कमाई से मुतमईन हो जाए। अगर उसकी कमाई से मुतमईन नहीं होंगे माँ बाप, तो उस बेटे को प्रेशराइज करेंगे, उसके दिमाग में दबाव डालेंगे और उसका ज़हनी सुकून को माँ बाप छीन लेंगे। हम ऐसा देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप नाशुक्री करते हैं, अपने बच्चों की बदनामी करते हैं, अपने बेटे की बदनामी करते हैं, लोगों के सामने बयान करते हैं कि मेरा बेटा मेरा खर्च नहीं उठाता, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। हालांकि वो बेटा देखता है, सब कुछ करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि वो बाप वो माँ ये दोनों बेटे की कमाई से मुतमईन नहीं है, राजी नहीं है। वो इस बात पर राजी नहीं है, इस बात पर खुश नहीं है कि मेरा बेटा जितना कमा रहा है अल्लाह ने उसकी तकदीर में उतना ही लिखा है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम राजी हो जाए। उसी तरीके से बीवी के ऊपर भी जरूरी है, इसलिए कि बीवी के लिए शौहर कमाता है, बीवी के लिए जरूरी है कि उसका शौहर जितना कमाता है बीवी उससे राजी हो जाए, बीवी का दिल उससे मुतमईन हो जाए। अगर बीवी उससे मुतमईन नहीं है, उसकी कमाई से मुतमईन नहीं है, तो ये बीवी का बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गलत काम है जो बीवी के दिल में है, और वो ये सोचती है कि मेरा शौहर उसकी कमाई तो इतनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, वर्दा बिमा क़समल्लाहु लका, तुम राजी हो जाओ जितना अल्लाह ने तुम्हें दे दिया। जब कमाने वाले को राजी हो जाना है, तो कमाने वाला जिसके लिए कमा रहा है उसको सबसे ज्यादा राजी हो जाना। इसलिए कि जिसके लिए कमाया जा रहा है, जो बैठ बैठ के खा रहा है, उसको नहीं पता कि कमाने में कितनी दिक्कत और कितनी परेशानियां आती हैं। इसलिए उसको चाहिए कि जितना उसके लिए कमाया जा रहा है उससे मुतमईन हो जाए, उससे राजी हो जाए। अगर वो मुतमईन नहीं होगा तो फिर मामला बिगड़ते जाएंगे, इंसान गुनाहों की तरफ जाएगा। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु
وہ فرماتے ہیں, ان کا قول وہ کہتے ہیں لا يذوق احدكم طعم الايمان حتى يعلم ان ما اخطأه لم يكن ليصيبه وان ما اصابه لم يكن ليخطئه. فرمایا کوئی بھی انسان ایمان کا مزہ تب تک چکھ ہی نہیں سکتا, ایمان کا مزہ وہ لے ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس بات پر ایمان لے کر نہ آئے کہ حتی یعلم ان ما اخطأہ, کہ جو نکل گیا اس کو ملنے والا نہیں تھا, جو اس کو ملا نہیں اس کو ملنے والا نہیں تھا, اور جو اس کو ملنے والا ہے وہ جانے والا نہیں ہے. اگر اس بات پر جب تک کوئی ایمان نہ لائے تب تک وہ ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتا. اس لیے انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ تقدیر کے اوپر پورا کا پورا ایمان لے آئے, اور تقدیر کے اوپر پورا ایمان ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر میرے مقدر میں فلاں بھلائی لکھ رکھی ہے تو بھلائی دنیا کی پوری طاقت مل کر کوئی بھی چھین نہیں سکتا. اگر میرے نصیب میں مصیبت ہے, بلا ہے, کوئی تکلیف ہے, پوری دنیا مل کر اس کو دور نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا. جب تک کہ اس بات پر کوئی انسان ایمان لے کر نہ آئے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے, مومن ہونے کے لیے تقدیر کے اوپر ایمان ضروری ہے. اور کیسا ایمان, یعنی جو بھی تکلیف مجھے پہنچی ہے یا پہنچے گی وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو بھی بھلائی مجھے پہنچے گی وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اگر بھلائی پہنچے تو وہ شکر ادا کرے, اگر مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرے, ایسا ضروری ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو رزق دے رکھا ہے, جسے ہم سمجھتے ہیں مال کا رزق. رزق عربی زبان میں صرف مال کو نہیں کہتے, بلکہ اللہ کی تمام نعمتیں, جن نعمتوں سے اللہ انسان کو نوازتا ہے ان کو رزق کہا جاتا ہے. ان نعمتوں میں سے رزق ایک مال ہے. مال بھی ایک رزق ہے, مال ہی پورا رزق نہیں بلکہ مال بھی ایک رزق ہے. مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو دنیا کی تمام نعمتیں اس کو دے دی ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ممکن نہیں. عربی کے ایک شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رزق یہ صرف مال نہیں ہے. اس نے اپنے قصیدے میں اس بات کو بہترین انداز میں سمجھایا ہے. وہ کہتے ہیں لیس شرطا ان یکون الرزق مالا, کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مال ہی رزق ہو. قد یکون الرزق خلقا او جمالا, کہ اچھا اخلاق بھی یہ اللہ کا رزق ہے. اچھا اخلاق بھی اللہ کا رزق ہے. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو دوسرے لوگ ہمارے پاس آئیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, ان کو اچھا لگے گا. اگر کسی کا اخلاق برا ہے, اخلاق بہتر نہیں ہے, اس کا کیریکٹر لیس انسان ہے, اس انسان کے پاس دوسرے انسان اٹھتے نہیں ہے, بیٹھتے نہیں ہے, اس سے سلام و کلام نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اخلاق برا ہے. اس کی برائی سے, اس کے شر سے لوگ بھاگتے ہیں. اگر بچوں کے اخلاق بگڑ جائے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. اگر بیوی کا اخلاق بہتر نہ ہو تو شوہر پوری زندگی پریشان رہے گا. اگر شوہر کا اخلاق برا ہو, اچھا نہ ہو, تو بیوی پوری زندگی پریشان رہے گی. اس لیے اگر کسی انسان کا اخلاق بہتر ہے تو دنیا کی بہت ساری بھلائیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے. اگر اس کا اخلاق برا ہے تو دنیا کی بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگ اس کے ساتھ اٹھنا, بیٹھنا, تجارت کرنا, کام کرنا پسند نہیں کرتے, جس کی وجہ سے دنیا کی بہت ساری بھلائیوں سے, اچھائیوں سے وہ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے. اور فرمایا او جمالا, کہ اچھا, خوبصورتی, حسن و جمال بھی اللہ کا رزق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جن سے لڑکیاں شادی نہیں کرنا چاہتی. کیوں؟ یا تو بہت زیادہ موٹاپا ہے, یا شکل و صورت اچھی نہیں ہے. اس لیے یہ حسن و جمال, اگر اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا ہے, آپ خوبصورت انسان ہیں, یاد رکھیے یہ بھی اللہ کا رزق ہے, اللہ کی نعمت ہے. جس نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے, ہو سکتا ہے کہ نعمت آپ کے بھائی کو نہ ملی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت, یہ حسن و جمال والی نعمت کسی دوسرے کو نہ ملی ہو. اللہ نے اس نعمت کو آپ کے ساتھ خاص کیا اور آپ کو دیا. اس لیے حسن و جمال, خوبصورتی, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
वो शायर आगे कहता है क़द यकूनु रिज़्क़ु अक़लन राजिहन, कि रिज़्क़ कभी कभी ये अक्लमंदी भी होती है। अक्लमंदी, होशमंदी, फहमो फरासत, अक्लमंदी, अक्लमंद इंसान। सारे इंसान अक्लमंद नहीं होते, बहुत सारे इंसान पागल भी होते हैं, बेवकूफ भी होते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अक्लमंद है, होशियार है, चालाक है, फहमो फरासत है, वो फैसले लेना जानता है और हालात को देखकर हालात को भांप लेता है और हमेशा बेहतर फैसला करता है, ऐसा इंसान अक्लमंद इंसान है। अगर किसी को अल्लाह ने ये अकल दी हो तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक उसके अंदर ज्यादा अकल नहीं है, वो उतने ज्यादा अक्लमंद नहीं होते, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो दूसरों को हायर करते हैं, बड़े बड़े माहिर को हायर करते हैं, जो इस फील्ड के माहिर होते हैं, वो अक्लमंद होते हैं और वो अक्लमंद उनको मशवरे देते हैं, फिर उनके मशवरों से वो कंपनी आगे बढ़ती है। जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं, उन ओहदों में अगर अक्लमंद इंसान को ना बैठाया जाए तो मामला खराब हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। हर फील्ड के लिए, हर मैदान में अक्लमंद का होना जरूरी है। अगर उस मैदान में उन ओहदों पर अक्लमंद इंसान ना बैठे हो तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको अकल दी है, फहमो फरासत दी है, याद रखिए अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है जो अल्लाह ने आपको दिया है। ये तोहफा किसी और को या बहुत सारे लोगों को नहीं दिया गया है, अल्लाह ने उनको इस तोहफे से महरूम कर दिया है। अक्लमंद इंसान के पास लोग आते हैं, मशवरे लेते हैं कि आप बताइए, आप मशवरा दीजिए, मैं ऐसा करूं या ना करूं। ये अक्लमंदी की पहचान है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को ऐसी अकल दी है, अक्ल सलीम दी है, उसको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। आगे फरमाया क़द यकूनु रिज़्क़ु ज़ौजन सालिहा, कि रिज़्क़ की सूरत में कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को, बहुत सारे इंसान को नेक बीवी अता फरमाता है। नेक बीवी अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। नेक बीवी अल्लाह का बहुत बड़ा रिज़्क़ है। नेक बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिस नेमत से दुनिया के बहुत सारे लोग महरूम हैं। अगर किसी को नेक बीवी मिल गई, वह इंसान मालामाल हो गया, वह इंसान मालदार हो गया। उससे बढ़कर इस दुनिया के अंदर कोई मालदार नहीं, इसलिए कि इंसान माल कमाने के लिए अपने घर को छोड़ता है, घर से बाहर जाता है और दुनिया की परेशानियों को झेलता है, लोगों की मुसीबतों को झेलता है, उसके बाद माल कमाता है। माल कमाकर जब वो घर आता है सुकून हासिल करने के लिए, आराम हासिल करने के लिए, अगर नेक बीवी होगी उस इंसान को सुकून पहुंचाएगी। अगर नेक बीवी नहीं है, वह इंसान पहले से ही तप चुका है दुनिया की मुसीबतों से, परेशानियों से। अब जो वो घर आया, बीवी ने उसको और तपा दिया, उसको और गर्म कर दिया। अगर बीवी नेक होगी, वो इस बात को समझेगी कि मेरा शौहर काम से आया है, अब उसके साथ मेरा रवैया कैसा होना चाहिए, कैसा सलूक होना चाहिए। अगर इंसान को अपने घर में सुकून मिलता है, अपनी बीवी से सुकून मिलता है, दिमाग ठंडा होता है, उस इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको नेक बीवी देकर उसके ऊपर बड़ा एहसान किया है, बड़ा करम किया है। इसलिए नेक बीवी का होना ये अल्लाह का बड़ा इनाम और इकराम है। अगर किसी की नेक बीवी ना हो, फिर देखे उसका घर कैसे तबाह बर्बाद है, कैसे उसका घर उजड़ गया है। घरचे वो तो घर के अंदर रहता है, बड़े बड़े मकानात में रहता है, लेकिन उस घर में कोई सुकून नहीं। क्यों? बीवी की वजह से। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो नेक बीवी की दुआएं करे। आगे फरमाते हैं औ क़िराबातिन किरामन व अयालन, अच्छे रिश्तेदार, नेक रिश्तेदार अगर किसी को मिल जाए, ये भी अल्लाह का बड़ा फजल है। रिश्तेदारों में रकाबत रहती है, रिश्तेदारों को शैतान भड़काता है कि इनके दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाए, ये आपस में लड़े। लेकिन अगर नेक रिश्तेदार हो, वो हमेशा आपकी खैर खाई चाहेंगे, वो हमेशा चाहेंगे आप तरक्की करें, वो आपकी भलाई चाहेंगे। लेकिन अगर रिश्तेदार नेक ना हो, अच्छे ना हो, तो आपकी बर्बादी चाहेंगे, वो हमारी बर्बादी चाहेंगे। अगर रिश्तेदार नेक ना हो, दूसरा कोई बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि घर के ही लोग हमें बर्बाद कर देंगे।
इसलिए अगर किसी के रिश्तेदार नेक हैं, भाई अच्छे हैं, बहनें अच्छी हैं, उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नेक भाई दिया है, ऐसे भाई अता किया है जो भाई आपस में रहमदिल हैं, एक दूसरे के खैर खा है। अगर ऐसे भाई हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का बड़ा करम है। आगे फरमाया वअयालन, अगर किसी इंसान को नेक औलाद मिल जाए ये भी अल्लाह का बड़ा फजल है, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा रिज़्क़ है। इसलिए कि अगर नेक औलाद ना हो, औलाद नेक ना हो, तो उस इंसान की कमाई, उस इंसान की जवानी, उस इंसान की मेहनत, उस इंसान की तगोदो, पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर नेक औलाद ना हो, अगर औलाद नेक ना हो तो बुढ़ापे में भी सर में दर्द। अगर नेक औलाद ना हो, बाप ने पूरी जिंदगी गुनाहों से बचकर बड़ी इज्जत कमाई है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे, कोई शराब पी रहा है, कोई फला गुनाह में मुलव्विस है, कोई किसी को लेकर भाग गया। ऐसी सूरत में बाप का सर जो ऊंचा था वो झुक जाता है, वो बाप मारे शर्म के सर झुका के करता है। अगर औलाद नेक हो तो औलाद क्या करती है, अपने बाप के सर को ऊपर करती है, वो अपने बाप के सर को, बाप का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। वो बाप जब चलता है तो उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। लेकिन अगर औलाद नेक ना हो तो औलाद बाप को बदनाम करती है, और फिर क्या होता है, वो बाप जब सड़कों पे चलता है शर्मिंदगी के साथ चलता है, शर्म उसके चेहरों पर टपक रही होती है। इसलिए अगर किसी इंसान को नेक औलाद मिल जाए उसको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। आगे फरमाया क़द यकूनु रिज़्क़ु अअमारन अतवाला अअमारन तिवाला, अगर किसी इंसान को लंबी उम्र मिल जाए ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा रिज़्क़ है। लंबी उम्र अगर किसी को मिल जाए ये अल्लाह का बहुत बड़ा रिज़्क़ है। लंबी उम्र से फायदा क्या होता है, लंबी उम्र से फायदा ये होता है कि इंसान को नेकियां करने का ज्यादा मौका मिलता है। एक इंसान 20 साल की उम्र में चला गया, एक इंसान 60 साल की उम्र में जा रहा है, 70 साल की उम्र में जा रहा है, जाहिर सी बात है इसको ज्यादा नेकी करने का मौका मिलेगा, ज्यादा नेकियां कमाने का मौका मिलेगा। जो पहले गुजर गया उसको ज्यादा नेकियां कमाने का मौका नहीं मिलेगा। एक इंसान 25 साल 30 साल की उम्र में चला गया, उसके बच्चे यतीम हो गए, उसकी बीवी बेवा हो गई, उसका घर बर्बाद हो गया, उसके बच्चे यतीम हो गए, अब दूसरों के सहारे पे होंगे। लेकिन अगर उस इंसान को 60 साल की उम्र मिलती है, 70 साल की उम्र मिलती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, उनको पढ़ाकर लिखाकर तालीम दिलाकर बाप अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाता है, फारिग हो जाता है, फिर बाप के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर किसी इंसान को इतनी उम्र मिली कि बच्चों की शादियां हो गई, बच्चों की तालीम मुकम्मल हो गई, अब वो बच्चों की जिम्मेदारियों से फारिग हो चुका है, उस इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसको इतनी उम्र दी कि उसके बच्चे यतीम नहीं हुए, अल्लाह ने उसको इतनी उम्र दी कि उसकी बीवी बेवा नहीं हुई। अगर अल्लाह चाहता उसकी बीवी को बेवा बना देता, अगर अल्लाह चाहता उसके बच्चों को यतीम बना देता, लेकिन अल्लाह ने उसके ऊपर एहसान किया कि अल्लाह ने उसको 60 साल की 70 साल की जिंदगी दी। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, एक आदमी आता है तो सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल अय्युन्नास खैरुन, अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन है, खुशकिस्मत कौन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तौल उम्रुहु व हसून अमलुहु, कि खुशकिस्मत वो है जिसको लंबी जिंदगी मिली और उस जिंदगी का फायदा उठाते हुए उसने बहुत सारी नेकियां की, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा, अपने बुढ़ापे को अल्लाह की इबादत में गुजारा, बहुत सारी उसने नेकियां कर ली। अगर किसी को लंबी जिंदगी मिली और बहुत सारी नेकियां की, ये बड़ा खुश नसीब इंसान है। आगे पूछा अय्युन्नास शर्रुन, ये अल्लाह के रसूल बदकिस्मत लोग कौन है। फरमाया मन क़ाल उम्रुहु, जिसको लंबी जिंदगी मिली, वस्साअ अमलुहु, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अपनी जवानी को गुनाहों में गुजारा और अपने बुढ़ापे को भी गुनाहों में गुजारा, और 60 साल 70 साल इस दुनिया में रहने के बाद नेकियां कुछ नहीं की, बल्कि गुनाह ही गुनाह करते हुए इस दुनिया से मर गया। ऐसा इंसान बदकिस्मत है, ऐसा इंसान बदबख्त है
کہ اللہ نے اس کو بہت موقع دیا, بہت وقت دیا, لیکن اس نے اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا, اور کیا کیا, دنیا میں بس گناہ پر گناہ کرتا رہا اور اس دنیا کو چھوڑ گیا. بخاری کی روایت ہے, کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ, کہ اللہ اس انسان کا عذر کو قبول نہیں کرے گا جس انسان کی موت کو مؤخر کرتے کرتے اللہ نے اس کو 60 سال کی زندگی دے دی. جو انسان 60 سال کی زندگی پا کر مرتا ہے, اللہ اس کا عذر قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ نے اس کو نیکیاں کرنے کا بہت زیادہ موقع دیا, بہت زیادہ ٹائم دیا. لیکن اب اس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو فالتو کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں, جو چائے کی دکانوں میں بکواس کرتے ہوئے اپنا وقت گزارتے ہیں, اس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. حالانکہ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کی عمر 60 سال ہو چکی ہے, آپ عمر دراز ہو چکے ہیں, آپ ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے ہیں. اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں. ایسے انسان کا اللہ عذر قبول نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کا جو 20 سال کی عمر میں مر گیا اس کا عذر قبول کر لو کہ اللہ مجھے دنیا میں زیادہ وقت نہیں ملا, میں تو 20 سال کی عمر میں مر گیا, میں تو 25 سال کی عمر میں مر گیا, اللہ تو میرے اوپر رحم فرما. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحم کر دے, کیونکہ اس کو وقت زیادہ نہیں ملا تھا. لیکن جس کو 60 سال کی زندگی ملی یا اس سے اوپر کی زندگی ملی, اس حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین اس کا کوئی بھی عذر قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم راضی ہو جائیں اپنی قسمت سے. جتنا کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس سے مطمئن ہو جائے, اس سے راضی ہو جائے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان تقدیر پر مکمل ہو جائے گا, ایمان کامل ہوگا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہمارا ایمان ناقص ہوگا. تخیر میں رب العالمین سے دعا ہو کہ بار الہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ جب تک ہم جیئیں اسلام پر جیئیں, جب ہمارا خاتمہ و خاتمہ ایمان بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.